Yeah, good evening. Hi, this is Dr. Purva Nair. I'm today going to talk about fertility factors. So it is a very short video, male and female infertility factor I'm going to talk about, and plus how the hormonal changes and how your sex drive decreases with age and is also associated with your fertility factor. Male fertility factor we usually see with the sperm count, sperm motility, and the quality of the sperms, and they usually declines around 40-45. But if there is it's a faster decrease if there is other comorbidity or chronic illnesses attached like smoking, BP, and other factors, stress. And mother or female infertility factor are usually counted by serum anti-Mullerian hormone, which is countable for the follicles or how much follicles you have in your body. So it's a blood sample taken by a venous, and it is usually tells you how much follicle tentative follicular age you have. So it is generally from zero point 0.9 to 9. There's a different age. So there is this thing. It also depends on not only AMH. It also depends on AFC, antral follicular count, which is done on the ultrasound. So not only the AMH tells you about fertility factor, but it also tells you about how much follicles you have. So the important factor when you have a low AMH or when you have a declining AMH, it's better to for a female to get her eggs freeze, because when she freezes her eggs, that process becomes reversible. So she can have any time, she can have her own genes, she can have her own babies. So and once it starts declining, it's an irreversible process. No matter whatever you take, no matter whatever you are taking antioxidant or yoga or meditation, एक बार फॉलिकुलर काउंट कम हो गया, फॉलिकल्स कम हो गए बॉडी में, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते कि जो फॉलिकल्स वेस्ट हो गए हर साइकिल में उनको आप वापस कैसे लाओगे. इट इज़ हर फीमेल एम्ब्रियो में ये प्री डिसाइडेड होता है कि हर कितने फॉलिकल्स इसके बने थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज. तो इट्स बेटर कि जब भी आप अगर करियर ओरिएंटेड हो या थोड़ा लेट बेबीज का प्लान कर रहे हो तो आप एग फ्रीज करा लो. नो मैटर इफ यू डोंट वांट टू हैव बेबीज, स्टिल फ्रीज योर एग्स, बिकॉज आप अगर किसी अर्ली एज में एग फ्रीज कराते हो तो यू कैन इवन डोनेट योर एग्स टू समवन हु इज रियली इन नीड. सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेक्स. लाइक सेक्शुअल ड्राइव हॉर्मोन्स के साथ कम होने लग जाती है, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. बिकॉज क्या होता है, बिकॉज देर आर सो मेनी हॉर्मोनल चेंजेस, देर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इट इज़ एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल फैक्टर. इट इज़ नॉट कि रिलेशनशिप में कोई डिफरेंट मोटो एक डिफरेंट मोटिव से आप सेक्स करोगे या कुछ. आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसी है. ठीक है. पीपल से कि आई डोंट गेट यूजुअली आई डोंट गेट ऑर्गेजम विद माय हस्बैंड और समथिंग. It is basically because you are under stress, under pressure doing sex with your partner, or even the male partner. They don't even after a certain time they become monotonous with their female partners, because क्या होने लग जाता है आप जब आप कि there is this sexual drive depends only on one focus that you want to have babies or when you have to. तो थोड़ा थोड़ा उससे भी फैक्टर होता है. तो जब आप मोमेंटली करते हो कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप बहुत स्पॉन्टेनियसली करते हो, आप बहुत ईजिली उससे गेन पा लेते हैं. कोई भी काम होता है लाइफ में हम उससे यूजली भी गेन ईजिली अगर आप बहुत स्पॉन्टेनियसली करते हो. आप किसी चीज़ में बहुत हार्ड वो वर्क कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहे हो, तो कभी कभी काम सुधरने में बिगड़ भी जाता है. और एक और मेरे से बहुत कॉमन सवाल मेरे मैसेजेस में लोग पूछते हैं कि मेल का पीनस साइज इज इम्पॉर्टेंट और नॉट फॉर हैविंग गुड सेक्स और फॉर अ गुड रिप्रोडक्टिव लाइफ. नो नो नो, इट्स अ बिग नो. एंड इट्स मेल्स penis size, males ejaculation time never depend on the orgasm of the female or the reproductive life of of a couple. It is basically depends how much a penis or a penis can give clitoris stimulation. तो चाहे वो छोटा पीनस हो चाहे वो बड़ा पीनस हो, इट डजेंट मैटर आपने उस फीमेल के क्लाइटोरस को कितना स्टिमुलेट किया है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एंड इट कैन बी डन विद एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. लेकिन हाँ, अगर पीनस के साथ उसका क्लाइटोरल स्टिमुलेशन होता है तो वो हमारे उसमें भगवान ने ऐसा बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली ऐसा बनाया कि आपका साइज ऑफ पेनिस डजेंट डिपेंड ऑन द रिप्रोडक्टिव लाइफ. आप छोटे पेनिस, मीडियम साइज पेनिस और वेरी बिग
with a very big cock also you can have a good sexual life. एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वैसे ही इंप्रूव हो जाती है अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ थोड़ी अच्छी होती है तो इस मैटर में कि ऐसा बड़ा कॉक अंदर जाता है ये वो नहीं होता है. इट इज़ ऑल अबाउट योर इजैकुलेशन. आपकी स्पर्म मोटिलिटी कैसे, कितना अच्छा आपने कितनी देर तक क्लाइटोरल स्टिमुलेशन दिया है फीमेल को जिससे ऑर्गेजम आता है. यू यूजुअली इंजॉय डूइंग सेक्स. इट इज़ नॉट बिकॉज ओनली यू हैव टू हैव बेबीज. तो वो भी डिपेंड करता है और जिससे अपने आप ही आपको एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है विच मेक्स योर बॉडी रिलैक्सेस. तो आपको कंसेप्शन होने का नॉर्मल कंसीव बहुत नॉर्मली होता है. एंड यूजुअली क्या है फीमेल जो वजाइना इट्स बेसिकली ऑफ म्यूकोजा. वो पूरी अंदर एक म्यूकोजा लेयर से होती है और जो मेल पेनिस होता है दैट इज फुल ऑफ स्किन. तो जब आप कोई चीज़ किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, एक स्किन और एक म्यूकोजा का कंपैरिजन है, जब उसको बार बार फ्रिक्शन होता है या उनमें कंटिन्यूस मूवमेंट्स होती है तो उससे क्या होता है योर वजाइनल म्यूकोसा बिकम वेरी इरोडेड एंड वेरी दे बिकम वेरी एब्रेडेड इफ इट हैज नो कवरिंग ऑन इट, इफ इट डजंट हैव अ म्यूकस लेयर ऑन इट. तो क्योंकि एक तरफ स्किन और एक तरफ म्यूकोसा है, आप दोनों अगर दोनों तरफ स्किन होती या दोनों तरफ म्यूकोसा होता यू कैन ईजिली कंपैटिबिलिटी. लेकिन इसलिए हम लोग कहते हैं कि फीमेल जो डिस्पैरियूनिया है, जो फीमेल सेक्स के टाइम उनको पेन काफ़ी कॉमन है. अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज इज देयर इज 76% फीमेल्स एक्चुअल सेक्स जो होता है वेल विद द पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनसाइड अ वजाइना दे डोंट यूजुअली एंजॉय. They usually enjoy the foreplays because penis is something which is made up of skin and vaginal mucosa had to be lot of lubrication and lot of secretion to get that thing again and again and without having pain to a female partner. So I usually say that don't for it's भगवान ने ऐसा बनाया कि एक skin एक mucosa you can't do. बट इट इज़ आप ज़्यादा ऑर्गेजम या ज़्यादा उसको फीमेल को साइकोलॉजिकली रिलैक्स करवाएंगे तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्वियसली मेल पार्टनर की हो जाती है उस कंडीशन में. इट इज़ नॉट द मैटर एंड इट इज़ नॉट द साइज डजेंट मैटर इन दिस केस. you're psychologically comforting the female, making her more happy is depending on your conception. और जो चीज़ खुशी खुशी की जाती है उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं. तो इसी वजह से मैं यही बोलती हूँ कि जब आप कभी सेक्स करने जाओ यू शुड हैव लॉट ऑफ लुब्रिकेशन. अब आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते मैं आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट यूज़ करें या ऐसा कुछ यूज़ करें बिकॉज वो उसकी वजह से स्पर्म मोटिलिटी यूजुअली फॉल हो जाती है. तो आप अगर आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट या कोई परफ्यूमेटेड सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ जब आपको बच्चे नहीं कर रहे हैं, जब आपको सिर्फ सेक्स मजे के लिए करना है तो आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन जब आपको सेक्स को भी इंजॉय करना है और बच्चे भी करने हैं तो यू शुड हैव लॉट ऑफ साइकोलॉजिकली बैलेंस बिटवीन बोथ द पार्टनर्स एंड उससे चाहे दोनों को एक अच्छा लगे, एक मोमेंट आए कि हाँ हम वी आर इंजॉइंग इट, वी आर डूइंग इट और फिर वो रिजल्ट अपने आप बेटर हो जाते हैं. हार्मोनली भी फीमेल बॉडी जल्दी उसको इट्स शी इज लाइक अ रिसेप्टिव. कोई चीज़ ऊपर से डाला और वो जल्दी कैच करता है, आप मैग्नेट बन जाता है एक तरह से उस चीज़ के लिए. सो शी बिकम्स मोर रिसेप्टिव टू थिंग्स रिसीव फ्रॉम द मेल पार्टनर. तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. हाँ अगर आपके अंदर कोई ग्रॉस प्रॉब्लम ना हो या तो मेल स्पर्म काउंट कम ना हो या फीमेल की ट्यूब्स ब्लॉक है देन सेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम इज फिर तो आपको एनाटॉमिकली डिफेक्ट्स है तो आपको आईवीएफ पे जाना चाहिए डायरेक्टली. हाँ अपनी अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें तो यू कैन ऑब्वियसली यू इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप यू कैन एंजॉय इट. बट फॉर द पर्पज अगर ट्यूब ब्लॉक है या ओवरीज में कोई इशू है या यूट्रस की लाइनिंग सही नहीं है तो उन सब कंडीशंस में आप कैसे सेक्स करें, कितनी फ्रीक्वेंसी से करें, कितना एंजॉय करना है, कितना ऑर्गेजम आ रहा है वो सब मैटर नहीं करता. फिर तो आपको आईवीएफ विदाउट डिले आपको आईवीएफ पे जाना चाहिए ASAP. Okay, thank you and please DM me for any more queries. It will be fun to answer you all and thank you so much.